Jai Shri Swaminarayan. SSGM CBSE School, runs by Shri Sahajanand Gurukul, Mankwa, heartily welcomes you to online education. So, students of class 6th, today we are going to learn lesson number 3 from textbook, and the name of the lesson is Taro's Reward, which is already written over here, lesson number 3. Students, this lesson number 3 is from your textbook. Don't go through supplementary reader, and now I am going to explain this chapter. At that time you sit with your English textbook, and as and when you watch this video you just go through your textbook also, so it is very easy for you to understand the lesson. Okay students, so I am going to read this chapter. Taro's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. On a lonely hillside, Taro lived with his parents, and he was a woodcutter. Woodcutter means a person who cuts the wood in forest or jungle, we can say, लकड़ियां काटने वाला. Okay. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. अब सी स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पे, all day long he chopped wood in the forest. पूरे दिन वो लकड़ी काटता रहता है था, और he worked very hard, लेकिन वो काम बहुत ही मेहनत से करता था, बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम करता था. But then also he earned very little money, यानी फिर भी उसको सिर्फ कुछ ही पैसे मिलते थे या कुछ ही पैसे वो कमाता था. This made him sad, for he was thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. This made him sad, क्योंकि वो थोड़े से ही पैसे कमाता था, तो इसकी वजह से यह चीज उसको अंदर से खाए जा रही थी कि मैं बहुत ही कम पैसे कमाता हूं, मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाता हूं. यह सब सोच के वह दुखी हो जाता था. क्यों? क्योंकि ही वॉज अ थॉटफुल सन, यानी कि उसको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना था कि मैं अपने पेरेंट्स को कभी दुखी देखना नहीं चाहता हूं, मैं उनको सब वो उनकी जो जरूरत है वो मैं पूरी करूंगा, ऐसे करके. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. One evening, एक शाम की बात है, जब टैरो और उसके पेरेंट्स वो हट में यानी वो झोंपड़ी में बैठे हुए थे, कि तब अचानक से strong wind began to blow. Strong wind मतलब एक बहुत सी ठंडी हवाएं चलने लगी, और it whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. और वो झोंपड़ी में भी अंदर हवाएं चल रही थी, और उसकी वजह से तैरो और उसके पेरेंट्स जो झोंपड़ी में बैठे हुए थे उनको भी ठंड का बहुत ही महसूस हो रही थी, मतलब they feel very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. अभी यहाँ पर shake, S-A-K-E, shake over here, the word S-A-K-E, shake means it's a type of drink. We can say alcoholic drink. यहाँ पे बात हो रही है, तो ऐसे बोलते हैं कि if Taro's father said, I wish I had a cup of shake, it would warm me and do my old heart good. अगर मुझे कुछ पीने को मिल जाए तो वो मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो इसलिए मेरे को वह थोड़ा मदद मिलेगी या राहत मिलेगी ठंड से, क्योंकि ठंड बहुत ही लग रही थी. This made Taro sadder than ever. और यह सुनकर तैरो जो था वो और दुखी हो गया, जो पहले था उससे अब ज्यादा दुखी हो गया. बिकॉज
फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये जो सेक, जो उसके पापा ने बोला कि मुझे अगर सेक मिल जाता पीने को तो इट इज वेरी गुड फॉर मी, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी महंगा। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, मैं कैसे और ज्यादा पैसे कमाऊं, वो अपने आप को ही पूछता है यह क्वेश्चन कि मैं कैसे करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और फिर उसने ऐसा सोचा कि मुझे अब पहले से भी बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं और ज्यादा पैसे कमा सकूं और मेरे पापा के लिए या मेरे फादर के लिए मैं वो सेक है वो उनको पिला सकूं। Next morning, Taro jumped out of the bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut, and as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. Next morning, he woke up very early, यानी वो जल्दी बेड पर से उठ गया और कहाँ चला गया, वापस फॉरेस्ट जंगल में लकड़ियां काटने के लिए, और वह मॉर्निंग से बहुत ही कड़ी मेहनत सुबह से कर रहा था। देन एज सन क्लाइम मतलब जैसे जैसे ही सूर्य या सूरज दादा हम जिसको बोलते हैं, सन जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता गया, जैसे कि 9 o'clock to 10, 11, 12, लाइकवाइज वो जो सन की जो गर्मी है, सनरेज है, वो बहुत ही उसको खाए जा रही थी मतलब वह गर्मी से एकदम अकड़ रहा था। एंड देन ही ऑफ हिज जैकेट, उसने अपना जैकेट है वो निकाल दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह जो है वो सूख रहा था गर्मी के कारण। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, उसका पूरा जो मुंह है और बॉडी है वो स्वेट यानी पसीने से चमक रही थी। या My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. जैसे मेरे पापा को ये जरूरत है उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूं। And with that he began to chop even faster. Think of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bone. और फिर वापस वो सब सोचता है, वापस उसके दिमाग में ख्याल आ जाता है कि मेरे पापा को सेक चाहिए पीने के लिए, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, वो ठंड अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो फॉर दैट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू अर्न मोर मनी एंड आई वर्क वेरी हार्ड टू अर्न मोर मनी एंड देन आई गेट सेक टू माई ओल्ड फादर, ऐसा करके वह सोचता है। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड? सडनली अचानक से तारो को एक साउंड सुनाई दिया, यानी एक आवाज सुनाई दी। एंड व्हाट ही डिड वाज ही स्टॉप्ड चॉपिंग, यानी वो वुड काटना, उसने लकड़ी काटना स्टॉप कर दिया। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? क्या यह पानी का आवाज है जो बहता चला जा रहा है? टेरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. और फिर उसको प्यास तो ऑलरेडी लगी थी और वह पसीने से एकदम बेहाल हो गया था because of sun, and due to this he feel very thirsty, and for that reason he went towards the sound. मतलब जहां से आवाज आ रही थी उसके पीछे पीछे वो जा रहा था कि उसको लगा शायद वहां पर पानी बह रहा हो और पानी मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. एक पत्थर के पीछे एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल था। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sick? और फिर उसने एक कप अपने पानी कप था उसके पास जो उसने कहाँ रखा? पानी के नीचे जहां पर पानी बह रहा था, और वह कप
भरने के बाद उसने वो पिया और वो अपने आप से ही पूछता है, वॉज इट वाटर और इट्स अ सेक? क्या यह पानी है या सेक है? He had never seen a stream there before. He put his lips and tasted like a sake. फिर से उसने वो कप वापस पानी में डाला और फिर से वह पिया तो उसको रियलाइज हुआ कि यह वाटर यानी पानी नहीं है, इट्स फील्स लाइक, यार इट्स टेस्ट लाइक अ सेक, एक यह सेक की तरह ही उसको टेस्ट लगा। तारो क्विकली फिल्ड हिज पिचर with that water and rushed towards home as soon as possible. तारो ने पिचर यानी एक पॉट, एक गड़ा जिसमें पानी स्टोर कर सके, उसमें वो तुरंत वो पानी से उसने भर लिया एंड ran towards the home as soon as possible. वो तुरंत ही अपने घर की तरफ आगे बढ़ा या लौट रहा था। He began to at home the old father found the liquid tasty as well as heartwarming. और फिर उसने एक सिप इसमें कप ऑफ दिस वाटर और सेक उसने अपने पापा को दिया एंड देन द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, यानी उसने वह सेक पिया और वह एकदम से खुश हो गए। एंड आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। जैसे ही एक सिप, एक चुस्की मारी वह सेक की, देन हिज फादर स्टॉप शिवरिंग, शिवरिंग यानी कांपना, वह ठंड से कांप रहे थे, वो एकदम से स्टॉप हो गए। एंड देन ही स्टैंड अप एंड डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, उसके घर के तरफ वहां पर वो डांस करने लगे खुशी से। He offered a cup of sake to an old lady and also told her the story of that magic waterfall. और फिर ये टैरो ने यह कप अपने ओल्ड लेडी यानी घर में उसकी जो ओल्ड मदर थी उसको भी उसने यह दिया और उसने बताया टैरो ने कि ये मैजिक वाटरफॉल है, वहां पर वहां का ये वहां से मैं भरकर लाया हूं। She spread the news in the village. और शाम तक तो ये न्यूज पूरे गांव में फैल गई कि भाई टैरो को एक मैजिक वाटरफॉल मिला है जो उसको पीते ही वी फील वेरी डिलाइटेड एंड इट्स टेस्ट लाइक अ शेक। ऐसा करके पूरे गांव में, पूरे विलेज में यह न्यूज स्प्रेड हो गई। So many villagers took a sip of the sake. Next morning they went to that waterfall with jars and pitchers. और फिर उसी शाम उसके घर पे सभी विलेजर्स जो हैं वह एक सिप यानी वो भी चखने के लिए या उसको टेस्ट करने के लिए सभी विलेजर्स टैरो के घर विजिट करने लगे। और सून द पिचर यानी वो पॉट जो ये सेक से भरा हुआ था वो खाली हो गया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द विलेजर्स वेंट नियर दैट वाटरफॉल, यानी सभी विलेजर्स वह वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे अपने हाथ में कुछ न कुछ पिचर्स लेकर। एंड देन दे वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन वहां पर जाते ही वह डिसअपॉइंट हो गए। कौन डिसअपॉइंट हो गए? विलेजर्स। बिकॉज जैसे ही उन्होंने पिचर्स और जार्स वो पानी भरने के लिए वाटरफॉल में रखा कि फिर उन्होंने टेस्ट किया एंड दे फील दैट इट्स अ वाटर, यानी ये तो सिर्फ पानी है, कोई सेक नहीं है, ये टैरो है, उसने हमें उल्लू बनाया है। ही मेक अस फूल, और उसको सजा मिलनी चाहिए। बट टैरो हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द रॉक यानी एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे टैरो ने अपने आप को छुपा लिया एंड सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम ऑल दिस विलेजर्स। फिर विलेजर्स वहां से चले जाते हैं वाटरफॉल से अपने घर। टैरो फिर से जो अपने साथ बहुत बड़ा पिचर लेके आया होता है, देन ही once again went near the waterfall and filled it with that water, and once again he tasted that water feels like a sack, not a water.
The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. ये जो स्टोरी है ये जापान के एक किंग एम्परर के तरफ या उसकी ओर पहुंच गई और उसने ये पूरी स्टोरी सुनी कि मैजिक वाटरफॉल करके है और उसमें टेरो नाम का ये जो लड़का है उसको मैजिक वाटरफॉल मिला है और वो एक अच्छा काम करता है. He called Taro and rewarded him for his goodness and he rewarded with 20 gold coins and his service to his old parents. और फिर ये किंग ऑफ जापान या एम्परर ऑफ जापान, जापान के एम्परर ने किसको, टेरो को रिवॉर्ड दिया. रिवॉर्ड यानी उसको तोहफा या उसका इनाम मिला. क्या इनाम मिला कि तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जो अपने पेरेंट्स का इतना तुम ख्याल करते हो, उसको कैसे मतलब उसको हाउ टू गिव गुड लाइफ टू माई पेरेंट्स एंड हिज गुडनेस. और इसलिए ये जो एम्परर था जापान का उसने 20 गोल्ड कॉइन्स टेरो को रिवॉर्ड दिया. ही नेम द सिटीज बेस्ट फाउंटेन आफ्टर टेरो. और फिर टेरो के बाद वो फाउंटेन जो फव्वारा था उसका नेम ही रख दिया. एंड देन ही वांटेड ऑल चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट एंड ओबे देयर पेरेंट्स. और फिर यहाँ पे उसने ऐसा भी बोला कि all the children have to respect and obey their parents. So students, over here the explanation of this chapter number 3 Taro's reward यहाँ पर finish करते हैं. And the moral of the story यानी इसमें से हमें ये moral मिलता है कि we have to obey और respect our parents, grandparents and our elders. यानी हमसे जो भी बड़ा है, whether it is a teacher or parents, कोई भी हो, we have to respect. Now students, after completion of this explanation I am going to send question and answer and with all exercise through WhatsApp. Till then, thank you and Jai Shri Swaminarayan. Please do like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.